See, in Wednesday class, I discussed basically the basics of, कौन कौन से topics इस साल तुम्हें पढ़ने 11th class में. And all these classes will be recorded also, and they'll be available in the YouTube channel of NICS. अगर तुम YouTube पे सर्च करोगी NICS इंस्टीट्यूट, मोबाइल है तुम्हारे पास अभी, सर्च करो. मिला? Yes, sir. तो उसको तुम सब्सक्राइब कर लेना. सारे जो लेक्चर्स होंगे दे विल बी अवेलेबल हियर. मतलब लास्ट ईयर के तो हैं ही सारे अवेलेबल, बट इफ यू लुक इन द प्ले लिस्ट ऑफ दिस, you'll find that there'll be physics class 26 27, है ना? क्लास 11 फिजिक्स 26 27. तो Yes. जो लास्ट क्लास हुई थी ना, उसका लेक्चर वहाँ पे अपलोडेड है. So every class which would be taken over here will be uploaded there. In case you miss some class, it will be available there. And would you be attending all the classes online only? Not all, but sometimes. Okay. Where do you stay as such? DLF phase one. Hmm. So the class timing and days will remain fixed. Monday and Friday, 5:40, 5 to 7. And in case you want to study something extra, you have some doubts, then you can stay after the class also. So that I'll take care of. अभी स्कूल में क्या चल रहा है? Vectors. अच्छा, वेक्टर शुरू किया, मोशन वन डे शुरू नहीं किया अभी. No, ऑलराइट, कोई टेस्ट है अभी इन कमिंग डेज और no, कमिंग not वीक्स? yet. Not yet. नॉट येट ना. तो जब भी कुछ ऐसा होता है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल दैट व्हाट आई एम टीचिंग हियर, दैट पर्टिकुलर टॉपिक माई नॉट बी देयर इन द एग्जाम, मंडे टेस्ट और व्हाटएवर टेस्ट यू हैव. अगर कुछ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा शुरू किया तो वो हम अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है? So in the last class, I started with motion, that is kinematics, and we discussed state of rest and state of motion. I also discussed average speed, which is total distance covered by total time taken. ये हमने last class में किया था. And then we did some questions also on this. गंगेश लाइट वो कैमरा ऑन करो अपना. And we also discussed displacement and distance. Mel, do you know what is this difference between distance and displacement? Yeah, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Okay, good. So suppose a point moves from A to B, say by this path. So what will be displacement and what will be distance? It will be the same if it No, goes from it. no, it won't be the same. Gangesh, what is displacement? Displacement is the shortest distance between A Yes. and B There's the point. shortest distance between the initial and the final position. Initial position is A, final position is B. So the shortest distance would be this. So AB would be the displacement. Displacement is a vector quantity and it is the shortest distance between the initial and the final position. ये AB is the displacement. What about distance? Distance is the length of actual path covered.
डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो अगर इसके ऊपर एक थ्रेड रखें हम, उस थ्रेड को मेजर करें, दैट विल बी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑलवेज length of actual path covered, whereas displacement is the shortest distance between initial position and the final position. हो सकता है पार्टिकल इसी पाथ से जाए, if a particle moves by this path only, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन or equal to distance. Equal कब होगा? When the path, when the particle moves by the shortest path. अगर particle A B path से जाएगा तो उस केस में displacement और distance equal हो जाएंगे। Otherwise, displacement हमेशा उससे छोटा होगा। अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। What is average velocity? Average distance तो होता है total distance covered by total time taken, है ना। लेकिन average velocity is displacement divided by time, and it is a vector quantity. Average velocity would be vector quantity. It has direction, and it is displacement by time. एक क्वेश्चन करते हैं। Suppose a particle moves in a circular path with uniform speed. The radius circular path is 14 meter. Starts from A. It reaches to B. 1/4 of the circle. Again 1/4 the circle. Reaches to C and then reaches to D and then it comes back to the point A. So there's a particle which moves with uniform speed from A to B, then B to C, C to D, and back D to A. So the total time taken is 8 seconds for the entire circular path. My question for you is, can you to tell me average speed and displacement of the particle from A to B, then A to C, A to D, and then A to A. चारों केसेस में व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताओ। Particle is moving in a circular path. एवरेज स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम करोगे और एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है।
It is A to B, B to C, C, then A to C, A to D, and A to A. महल हो गया फर्स्ट पार्ट. A to B में what is the distance covered? Distance covered will be basically the length of actual path, you know. This is 1/4 of the circle. तो distance कितना हो गया? 2 pi r by 4, है ना? तो average speed is distance which is 2 pi r कितना है? इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं. 2 pi into 14 by 4 हो जाएगा distance, and time taken कितना है? पूरा complete cycle the time taken is 8 seconds. पूरे सर्कल में 8 सेकंड लग रहे हैं, तो 1/4 में कितना टाइम हो गया? 2 सेकंड. 2 सेकंड, राइट. तो एवरेज स्पीड वुड बी डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. तो इट इज, ये कैंसिल कर दो. पाई को यू कैन टेक 22/7 बिकॉज 14 इज बिन गिवन टू यू, एंड दिस वुड बी 11 मीटर, राइट. 11 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना था? अरे टाइम तो मैंने ले ही लिया था ना ऑलरेडी. 11 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज कमिंग आउट टू बी A to B में 11 मीटर पर सेकेंड. ये आ रहा है. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें मैंने सिर्फ एवरेज वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाला था. टुडे वी आर डूइंग एवरेज स्पीड ऑल्सो एंड एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो फॉर ईच पार्ट. थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. रेडियस मैंने 14 दे दी है, टाइम इज 8 सेकंड. कर लो. Mehul, you are cousin of Tarini? Yeah. Okay. You'll be joining for architecture also? Yes. एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसी पार्ट में? एवरेज वेलोसिटी के लिए वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे गंगेश? कितना डिस्प्लेसमेंट A to B? लास्ट क्लास का रिवाइज किया था? Yes, sir. लग नहीं रहा. अभी तुम लोग पढ़ाई के मूड में नहीं आए हो अभी, है ना? ऐसा मत करो. A to B, अनुष, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. जब भी तुम्हें Sir, हाँ, root 392. रूट 392 क्यों होगा? हाँ, तो 196 हुआ ना, रूट 196 होगा ना डिस्प्लेसमेंट. 14 का स्क्वायर 196 होता है. अच्छा, तुमने वो अंडर मल्टीप्लाई भी कर लिया. सो दिस इज, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस हियर. जब भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो. दिस वुड बी 14√2. 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर द रूट. 14 बाहर निकाल दिया, 14√2 आ गया. तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तुम्हें समझ में आया महल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकला ये? तो डिस्प्लेसमेंट is 14√2. टाइम टेकन कितना है? 2. आंसर इज 7√2 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू नोटिस दैट दिस average velocity and average distance, average speed, they're coming out to be different. दोनों अलग अलग आ रहे हैं. AC पार्ट करो. स्कूल में क्या हुआ आज? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अच्छा अच्छा. हाँ, वो मेरे ख्याल से एनुअल डे वगैरह चल रहा है ना स्कूल में. अच्छा. हाँ. A to C में कितना है डिस्टेंस? Will be half of the circle, right? When the particle is moving from A to C, it is basically traveling half of the circle, which is how much? Pi r.
So A to C, the distance would be pi r, which is divided by time taken कितना हुआ? The total time for the circle was 8 seconds. For half the circle, it will be 4 sir. right. So it will be 22 by 7 into 14 divided by कितना आंसर आ रहा है? Kilometer per hour. सेम आ रहा है? 11 Yes, meter sir. per second. What about the So, average velocity? महल एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? 7 meter per second. डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे? 28. यस, फाइनल पॉइंट को तुमने इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन किया and this is coming out to be 28 divided by 4, that is 7 meter per second. So notice that the average velocity has changed. जबकि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. What about A to D? A to D में क्या आंसर है एवरेज स्पीड का? 11 meter per second. Will be the same only 11 meter per second. गंगेश यही आ रहा है? yes, sir. हमारा कितना आ रहा है? हो गया? अच्छा. A to D is 11 meter per second. And what about average velocity? 15 root. Hmm? 15 root. 7. Will be the same. देखो, Yeah. जब तुम A से D वाला पार्ट कर रहे हो तो ये फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में को ज्वाइन कर लो. इट इज 14 रूट 2. 14 रूट 2 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. टाइम कितना लग रहा है? 6 seconds. 6. परफेक्ट आंसर आ गया. 7 रूट 2 बाय 3. एंड द लास्ट पार्ट, average speed would be the same, 11 meter per second. And what about average velocity? Sir, it should be 0. Will be 0 because displacement is 0. Perfect. ये था. तुम कौन से पार्ट पे कर रही हो? कर लो. एवरेज स्पीड सेम आएगी सभी में, ठीक है? डोंट डू दैट. लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट वाला कर लो एवरेज वेलोसिटी का. मैथ्स में क्या शुरू हुआ है गंगेश स्कूल में? Sir, quadratic equation. अच्छा. एंड मेहल तुम्हारा? Sets. सेट्स. I'll be starting with sets only. Yeah. हो गया सारा? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. एक क्वेश्चन लिखो. एवरेज स्पीड का तुम्हें फॉर्मूला पता लग ही चुका है ना? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट? क्वेश्चन लिखो. अ पार्टिकल कवर्स half the distance. A particle covers half the distance with speed v naught. Half the distance with speed v naught. For the remaining half distance, for the remaining distance, of course half ही होगा वो, for the remaining distance, for the half time, speed is v1. For half time, speed is v1, and remaining half time, speed is v2. Find
average speed for the entire journey. Find average speed for the entire journey. हाँ, अब देखो हुआ मैंने ये लिखवाया है, a particle covers half the distance with speed v naught. For the remaining distance, for half the time, speed is v1, and for remaining half time, speed is v2. महल क्वेश्चन समझ में आ चुका है? राइट, एवरेज स्पीड निकालनी है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। फॉर्मूला वही है बेसिक, एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करना है, प्लस यू हैव टू यूज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है क्या करना है। These are two formulas you have to use. Total distance by total time. सोचो और सॉल्व करो। फिजिक्स में wherever possible you can make a line diagram, it helps us, you know। तुम्हें डिस्टेंस टोटल नहीं दे रखा है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, डी ले लेते हैं। आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड तुम्हें मालूम है ऑलरेडी कितनी है, वी नॉट है। रिमेनिंग हाफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसने आधा टाइम के लिए दे रखा है स्पीड v1, और बाकी आधे टाइम के लिए स्पीड v2 दे रखा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, तुम कर पाओगे। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, सॉल्व हो जाएगा। अक्षता, रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? आइडिया? अच्छा, 25 अप्रैल। अच्छा ठीक है, अच्छा ही आएगा। नहीं नहीं भी आएगा तो डोंट डजंट मैटर मच। 10th के मार्क्स आर इमटेरियल, जस्ट दे आर जस्ट नंबर्स, दे आर जस्ट नंबर्स, दे आर जस्ट नंबर्स। और व्हाट मैटर्स इज 11th, यू हैव टू बी एट इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड 12th। ये ए ले लेता हूँ मैं, ये बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ। मैंने थोड़ा लाइन डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग जाए क्या हो रहा है। न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम। तो जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास डी है ही सही, एंड में डी भी कट जाएगा। हमारा आंसर सिर्फ वी नॉट, वी1 और वी2 में ही आएगा। अब ए से बी तक का टाइम कैसे निकालोगे अक्षिता? ए से बी तक कितनी स्पीड थी? नहीं, ए से बी तक। नींद में मुझे लग रहा है आज, नींद आ रही है तुम्हें? लग रहा है। ए से बी आधा आधा डिस्टेंस था ना, तो आधा डिस्टेंस किससे कवर किया उसने?
तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा बताना महल? ए टू बी जाने में कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस में मालूम है डी बाई टू है, स्पीड में मालूम है डी वी बाई नॉट है। टू अपॉन बी नॉट। क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा मत बोलो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हुआ। तो ए से बी तक का टाइम इतना है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकालना है ना मुझे। आई एम राइटिंग डी बाई टू डिवाइड बाई वी नॉट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है गंगेश? दिस इज फाइन। अब मुझे बी से डी तक का टाइम भी निकालना है, बट आई डोंट नो दिस, ये डिस्टेंस कितना है, आई डोंट नो दिस डिस्टेंस कितना है। इन दोनों का सम पता है मुझे, डी बाई टू है, लेकिन ये थोड़ी डी बाई फोर होगा। फॉर श्योर ये जो डिस्टेंस है वो डी बाई टू है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि ये डी बाई टू है, ये डी बाई टू है। वो नहीं कर सकते। एवरेज स्पीड इज नॉट वी वन प्लस वी टू बाई टू। यू कान डू दैट। हमें बी से डी तक का टाइम मालूम नहीं है, मैं उसको लेट कर रहा हूं। लेट दिस टाइम बी टी। इसको मैं टी लेता हूँ फॉर अ मोमेंट। कैपिटल टी ले लिया मैंने, मैं टी लिख दिया, यहाँ तो मैंने छोड़ दिया। तो टोटल डिस्टेंस कवर डी है, एंड टोटल टाइम ए से बी था डी नॉट, डी बाई टू बाई वी नॉट, प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब जरा क्वेश्चन को चिल्ला के पढ़ो, क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ था। फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस फॉर हाफ द टाइम स्पीड कितनी है? v1। फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम स्पीड इज v2। इससे कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए हमें? यस, गुड। दैट मीन्स इस, ये जो बीसी डिस्टेंस है उसका टाइम t बाई टू है, और cd डिस्टेंस में भी कितना टाइम लगाया उसने। अब तुम इसको आंसर कर सकते हो। नाउ आई गिव यू 5 मिनट्स, आंसर योर सेल्फ। मेरे समझ में आ गया टी बाई टू कैसे हुआ? अब सॉल्व कर लो। फाइनल आंसर में डी और कैपिटल डी नहीं आएगा, वी नॉट वी वन वी टू आएगा। गंगेश समझ में आ गया? बी से डी तक का टाइम कैपिटल टी था, क्वेश्चन में दिया हुआ है आधा टाइम के लिए स्पीड वी वन है, आधे टाइम के लिए स्पीड वी टू है। करो अब। हम्म, जरा बताओ अक्षिता, बीसी डिस्टेंस कितना होगा? बीसी कैसे निकालोगे तुम? डिस्टेंस बीसी कैसे आएगा? डी बाई फोर क्यों हो गया? डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड इनटू टाइम। बी से सी में कितना स्पीड है? वी वन। टाइम कितना है? बस बात खत्म। तो बी सी इज दिस मच, ठीक है महल, गंगेश। डिस्टेंस सी डी कितना होगा बताओ? अगेन, स्पीड कितनी है? वी टू। टाइम कितना है? टी बाई टू। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, तो क्या आएगा? बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू टी बाई टू, मैं कॉमन ले रहा हूँ, वी वन प्लस वी टू। बट वॉट इज बी सी प्लस सी डी? महल, बी सी प्लस सी डी क्या है?
D/2. राइट, लिखो उसको d/2। 2 से 2 काट दो और यहां से t निकाल लो। जो भी t आएगा उसको चुपके से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। This t you substitute in the equation 1, you got the average speed for the entire journey. हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट क्या है? फिफ्थ सब्जेक्ट क्या लिया तुमने? इकोनॉमिक्स। फाइन आर्ट्स नहीं था? फाइन आर्ट्स नहीं है? ले रही थी, अच्छा रहता। कर रही हो? पर इको में भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना तुम्हें। इको में टाइम कंज्यूम होगा। नो, अरे तुम 2 ईयर प्रोग्राम कर रहे हो, तुम्हारा तो वैसे ही अच्छी जगह हो जाएगा। यू डोंट नीड बैकअप। यू लाइक इको। इको में ना थोड़ा यू नीड टू स्पेंड टाइम, इसे हैवी सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग है बट हाँ ठीक है। बिकॉज आर्किटेक्चर में क्या, 2 एग्जाम है, एक तो नाटा मेन, उसमें बोर्ड परसेंटेज ऐड होगा, है ना? हाँ। सो एंड ट्वेल्थ में यू हैव जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, देन अप्रैल सेकेंड अटेम्प्ट भी होगा। स्टिल स्टिल नहीं तो आर्ट का तो काफी, तो जो होम एग्जामिनेशन होता है उसमें काफी परसेंटेज स्कूल वाले के हाथ में होता है। बोर्ड में तो कम ही होता है। देख लेना, मतलब इट्स योर चॉइस, बट माय सजेशन दैट यू शुड टेक फाइन आर्ट्स और सम लाइटर सब्जेक्ट। देखिए फिर, हाँ वो दैट वुड हैव बीन द बेस्ट। तो अब इस टी को इसमें सॉल्व लिखो, सॉल्व करके बताओ एवरेज स्पीड क्या आ रहा है। d/2v0। टी कितना हो गया? d/, एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। डी कॉमन निकालो, डी कट जाएगा, मैंने कहा था कि फाइनल आंसर में डी नहीं आएगा। डी पहले कॉमन ले लो। 1/2v0 प्लस 1/v1 प्लस v2, टेक एलसीएम। डी एंड डी कट्स। क्या एलसीएम होगा इसका, गंगेश बताना। एलसीएम क्या लोगे इसका? Sir, LCM should be 2v0 into v1 plus v2. परफेक्ट। तो फाइनल आंसर आ गया सभी का। ये ऊपर आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0। देखो अक्षिता, ये आ रहा है। ये इसका आंसर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ फिजिक्स में स्पेशली मोशन में ना, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में ग्राफ एंड द इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ हम ग्राफ स्टडी करते हैं हम। ये आ चुका है, हो गया। बता रहा हूँ मैं इसको। सपोज a particle moves in such a way that its position versus time is something like this. When time is 0, s is also 0. S is position of the particle, ठीक है? When time is 1 second, time is in second over here. It is 2. When time is 2 seconds, 4. When time is 3, it is 6. When time is 4, it is 8. Time is in seconds and position is in meter. Question is, plot position time graph of the particle.
Normal practice is this, that in kinematics, we take time on the horizontal line, horizontal axis, and on the y-axis, velocity, acceleration, और displacement, or position. टाइम हमेशा तुम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लोगे. करो, प्लॉट करो, रफली डायग्राम बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ. टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लो, वाई एक्सिस पे वो ले लेना. This is 1, 2, 3, 4, right? This is 2, 4, 6, 8, ऐसे ले लेते हैं. So it's coming out to be a straight line which is inclined with the time axis, right? So this is the position time graph of the particle. इसको अभी इंटरप्रेट नहीं करते हम, इसको एज इट इज मैं छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल. A second particle has position time like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Plot position time graph for this. सेकंड का कैसे बना, महल बताओ. पैरल विद व्हाट एक्सिस, टाइम एक्सिस. ऑलराइट, गंगेश यही आ रहा है. सेकंड वाले में तो ग्राफ वुड बी a horizontal line, right? This is S. Now the third one. महल थर्ड वाला हो गया. Sir, I'm doing अच्छा, गंगेश तुम्हारा. also doing. अक्षिता थर्ड हो गया. हम्म. राइट. गुड.
ऐसा कुछ आ रहा है ना? यस सर। महल यही आ रहा है। इस शेप को बोला जाता है पैराबोला. इस इन मैथ्स ऑल्सो व्हेन वी स्टडी conic section in maths, we'll be studying parabola. You know about circle, this circle. Parabola is, like this or like this. इस shape को parabola बोलते हैं. Then you have ellipse, oval shape. ये भी maths में हम पढ़ने वाले हैं. And then you have hyperbola, which is like this. So all this part of maths. पहले वाले में को हम डिस्कस करते हैं. इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है? इन द फर्स्ट ग्राफ पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये हुआ. पहले वाले ग्राफ में पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड, इफ अ पार्टिकल कवर्स, नाम होता है कुछ इसका. गंगेश, इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस मोशन को क्या बोलते हैं? महल बताएगी. इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, लिखो. यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखो अब. In uniform motion, a particle covers equal distance in equal interval of time. A particle covers equal distance in equal interval of time. So that's uniform motion. ठीक है. तो पहला ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का. तो यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? Will be always an inclined straight line. लिख लो. In uniform motion, position time graph, in uniform motion, position time graph of a particle would be inclined straight line. Inclined straight line. Also, the slope of the line, I'll explain what is slope. Also, the slope of the line will give us velocity of the particle. The slope of the graph or slope of the line will give us velocity of the particle. Now, मैथ्स में हम स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं. स्लोप का मतलब होता है कि सपोज कोई अगर लाइन है तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो उसका जो टैन थीटा होता है उसको स्लोप बोला जाता है. ठीक है. ठीक है, तुमने पढ़ा था ना 9th-10th में. So slope is tangent of the angle, made by a line with positive x-axis. ठीक है? That is slope. Slope of a line is tangent of the angle made by the line with x-axis. उसको slope बोलते हैं. And we represent by small m also. तो यहाँ पे slope कितना होगा? If I ask you किस ग्राफ का स्लोप कैसे है, तो I can take this वाला. I can take this triangle OAB. जरा देखो OAB में tan थीटा बताओ मुझे कितना आ रहा है. तो वेलोसिटी आ जाएगी. OAB में tan थीटा होगा AB डिवाइड बाय OA. व्हाट इज AB? AB हाइट कितना है? 4 या 8? दिस इज 4 एंड दिस इज 2. दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. At the same time, let's define velocity also in terms of S and T also. ठीक है. तो as such, एवरेज वेलोसिटी जो हमने अभी किया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं.
Average velocity को you will write it this way, V average, and it would be S2 minus S1 by T2 minus T1. Average velocity is defined as the ratio of displacement by time taken. Physics में delta is basically for change. Whenever some quantity is being changed, we represent by delta. तो delta इसका मतलब क्या हुआ? Change in position. And delta t क्या हुआ? Change in time. So the ratio of change in position by change in time is called average velocity. अब एक काम करो जरा, इसी पहले वाले ग्राफ में find average velocity of the particle by taking t1 as 1 second and t2 as 3 second. एक पार्ट ये करो, जब t1 1 है t2 3 है तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, फॉर्मूला ये लग जाएगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, जब t1 2 है और t2 4 है तो कितनी एवरेज वेलोसिटी, सॉल्व करो. In the graph number 1, find average velocity of the particle for these two times. मेल नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन ही आओगी या ऑनलाइन? So, but most probably offline. ऑफलाइन आना, बिकॉज अक्षिता, दिस गर्ल अक्षिता, शी इज सेइंग कि मैम अकेली बैठी हूँ आज, कोई ऑफलाइन नहीं है. सेम आ रहा है. सो इस वाले पार्ट में इफ आई फाइंड वी एवरेज, एस टू कितना होगा 3 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 6 हुआ ना, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एस कितना था 2, एंड दिस वाज 3 minus 1, so 4 by 2, that is 2 meter per second, and rightly so because it's uniform motion है, तो it has to be same only. इस वाले पार्ट में कितना आ रहा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ सर सेम ओनली. सेम आ रहा है ना. दिस इज तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा वेलोसिटी सेम ही आएगी. सो wherever you know find the slope, this angle would be the same only. ठीक है. एंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू द वेलोसिटी. परफेक्ट हो गया ये. एक छोटा सा क्वेश्चन, महल लिख लिया ये. Yes, sir. सपोज मैं दूसरा एक और ग्राफ बना रहा हूँ, दो पार्टिकल हैं, उनका तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है. ठीक है. Position time graph has been given and it's like this. This is A, this is B. My first question for you is, किस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है? एक बार तुम रिवाइज कर सकते, चीटिंग कर सकते हो, पुराना पढ़ लो. सर बी शुड बी. हाँ, बी. भाई यस सर बिकॉज ये तो बड़ा सिंपल है, मैं भी बता सकता हूँ. बी का स्लोप ज्यादा, बी का एंगल ज्यादा है, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है. तो सिंपल है, तो बहुत, इट इज वेरी इजी. मेरे से भी आंसर हो गया ये. VB is more than VA. Why? Because
angle made by B is more than that of A. अब my second question is, what is the ratio of VB by VA? दोनों की स्पीड का रेशियो बताओ. वेक्टर में क्या कर लिया महल? डॉट प्रोडक्ट वगैरह हो तो गया सारा? हाँ. एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो गया? यस. 3 आ रहा है. अभी हमने किया था पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? स्लोप, tan थीटा. तो अगर मुझे को वी बी वेलोसिटी निकालना है, दैट विल बी tan 60, राइट, एंड दिस विल बी tan 30. परफेक्ट. सो 3:1, मतलब बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी का 3 टाइम्स है. तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हो गया. एंड स्लोप ऑफ पीटी, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी. वापस यहाँ पे आते हैं. इसमें क्या हो रहा था? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ मुझे. ग्राफ नंबर 2 किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन. कांस्टेंट स्पीड. अक्षिता सेज कांस्टेंट स्पीड. गंगेश यू सेड कि लीनियर मोशन. एंड मेहल तुम क्या बोल रही हो? लिनियर मोशन. लीनियर मोशन. एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालो इसमें तुम. एक बार T1 को 0 ले लो, T2 को 2 ले लो. एक बार T1 को 1 ले लो, एक बार T2 को 4 ले लो. करो जरा, दोनों केस में वेलोसिटी निकालो. ग्राफ नंबर 2, फाइंड वेलोसिटी. मेहल तुम्हें एक काम और करना है. तुम्हारी जो क्लास मिस हुई है ना, पिछली वाली क्लास, वो देख लेना आज. आज या कल में, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट क्लास. हम्म. 0 आ रहा है? क्या बात कर रही हो, ऐसा मत बोलो. दोनों में? यस सर, जीरो ओनली। तुम्हारा क्या महल, तुम बताओ. ये लोग तो मुझे गुमराह कर रहे हैं. और सेम. क्या, कितना? 0. 0? तुम लोग तो बोल रहे थे कि भाई ये लीनियर मोशन है. वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ? अगर वेलोसिटी 0 आ रही है, इसका मतलब क्या क्या बोलेंगे इसको? मोशन बोलेंगे. इट इज एट रेस्ट, द पार्टिकल इज एट रेस्ट. ठीक है. तो नाउ रिमेंबर दैट whenever position time graph is a horizontal line, the particle would be at rest. Whenever, लिख भी लो सब कुछ, वरना तुम भूल जाओगे बाद में क्या किया था हमने. Whenever position time graph is a straight line, horizontal straight line, particle would be at rest. अब तुम इसको वैसे भी इंटरेक्ट कर, भाई मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है that when the position of particle changes with the passage of time, we say motion has taken place. यही तो होता है मोशन. अब हो क्या रहा है? 0 सेकंड में पोजीशन 5 मीटर थी, 1 सेकंड में 5 मीटर है, 2 सेकंड में 5 मीटर है, 3 सेकंड में 5, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. When the position of the particle is not changing, then it's at rest. So ये एक रेस्ट पे था. अब यहाँ पे आते हैं. एक काम करो, T1 को 1, T2 को
2, वेलोसिटी निकालो। T1 को 2, T2 को 3, वेलोसिटी निकालो। T1 को 3, T2 को 4, वेलोसिटी निकालो। तीनों केसेस में फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। गंगेश, तुम सैटरडे संडे क्या करोगे? मतलब वहीं से आओगे सीधा, यहाँ रुका करोगे? साउथ एक्स हाँ सर, अप डाउन। अप डाउन करोगे, ठीक है। तो जो हमारी फिजिक्स की एक्स्ट्रा होगी ना डाउट क्लास, वो संडे को हुआ करेगी, ठीक है, साउथ एक्स सेंटर में। यूनिट तो बताओ, किलोग्राम। हाँ, फिजिक्स में बिना यूनिट का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेल बताना, पहले वाले केस में तुम्हारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 1 सेकेंड में कितना था? डिस्पोजिशन 1, और 2 पे था 4, तो डिस्प्लेसमेंट 3 आ रहा था, है ना? Yes. तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड, 3 ये आ meter. रहा है। इस वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 9 मीटर आ रहा है। और वेलोसिटी कितनी आ रही है? 9 मीटर पर सेकेंड। हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ, 5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वाले में क्या हो रहा है? 3 और 4 में 7 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एस कितना हो गया? 7। तो 7 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब एक चीज नोटिस करो दैट इन 1 सेकेंड, देखा जाए तो टाइम तो 1 सेकेंड हुआ ना। 1 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल किया इसने। इस वाले 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया। इस वाले 1 सेकेंड में 7 मीटर ट्रेवल किया। That means the particle is traveling, or particle is covering unequal distances in equal interval of time. This kind of motion is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। non-uniform motion. वैसे भी देखो, यहाँ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, या 5 है, या 7 है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखो। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a particle a particle covers unequal distances in equal interval of time, unequal distances in equal interval of time। कुछ और भी डेफिनेशन हो सकती है क्या इसकी? सोचो जरा। मैंने लिखवा है इक्वल इंटरवल में डिफरेंट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। कैन वी डिफाइन द सेम, दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाय सम अदर डेफिनेशन? यस सर, लाइक इक्वल डिस्टेंसेस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं नहीं, इक्वल डिस्टेंस इन नॉन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना वे तो। नो सर, आई एम सेइंग इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। राइट, ये हो जाएगा। तो और करके लिख लो डेफिनेशन। और इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पार्टिकल कवर्स पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और क्या हो सकती है अक्षता, तुम बता रहे थे कुछ? Yeah, the velocity changes with time. You can say that also. In non-uniform motion, velocity keeps changing with time.
in non-uniform motion, velocity keeps changing with time. अब ग्राफ में मैंने यहाँ लिखा है वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे बस सपोज खड़ी है बस स्टॉप पे, एंड देन द ग्रीन लाइट, देन यू एक्सेलरेट द बस, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। Then after some time, there's empty road, bus is moving in uniform speed. But again, there's a red light. Again, you apply the brakes, then it slows down. So even if the bus is slowing down, the velocity decrease होगी तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, velocity was increasing, but it may be possible that with the passage of time, velocity decreases. तो अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, वो भी देख लो। This kind of parabola. This is when velocity will decrease with the passage of time. तो अब हमें तीन चीजें पता लग चुकी हैं। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। टेल मी वन थिंग, इज इट पॉसिबल दैट आई हैव अ ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल लाइक दिस? ग्राफ नंबर 2 पॉसिबल है या नहीं, ये बताओ मुझे। यस और नो? Yes, sir, possible. स्पीड तो है नहीं यहाँ पे कहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है। एस को तुम स्पीड से कंफ्यूज मत करो, ऐसे पोजीशन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने बनाया है। माय क्वेश्चन इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? इफ पॉसिबल व्हाई, इफ नॉट पॉसिबल व्हाई? थिंक लाउडली एंड आंसर। दिमाग पे जोर डालो। एस इज नॉट स्पीड, इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। हम्म, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज देता हूं, ये करो, जरा प्लॉट करना है इसको, भगवान तुम्हारा भला करेगा। Plot this graph. S is in meters, T is in seconds. क्या रहा है, ग्राफ को देख के तुम्हें पता लग जाएगा ये क्या हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहा है गंगेश? Sir, महल हो it's गया? महल हो गया तुम्हारा? ये वाला ग्राफ आ रहा है, T इज इक्वल टू 0 पे 10 था, जैसे टाइम कम बढ़ता गया 5 सेकंड में 0 हो गया। ये वाला ग्राफ आ रहा है। yes, sir.
वो क्या रहा है इसमें, ये जरा समझो। जब भी हम किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, मैंने कहा था ना रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए। तो हमने सपोज मान लो कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अ पार्टिकल और a car or a bus or a cyclist is at a distance of 10 meter from this, ठीक है। और हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जिस मोमेंट पे तुम मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो दैट इज t इक्वल टू 0। अब वो क्या कर रहा है, वो इधर आ रहा है। द कार और द बॉडी और द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जैसे जैसे वो ऑब्जर्वर के पास, ऑब्जर्वर इधर के पास आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, पोजीशन कम होती जाएगी। ये हो रहा है यहाँ पे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसने डिस्टेंस को कवर किया है, लेकिन वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो जब ओरिजिन पे वो पहुंचेगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसका तुम, अगर मैं इसकी वेलोसिटी पूछूं तो क्या बताओगे, इसकी वेलोसिटी बताना जरा। इस ग्राफ में व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट्स माय क्वेश्चन। ग्राफ से भी कर सकते हो, अदरवाइज वेलोसिटी का तुम्हारा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, उससे कर लो। कोई सा भी टाइम ले लो। मेरे ख्याल से T1 में तुम्हें देता हूँ 0 ले लो, T2 को ले लो 2, बताओ वी एवरेज कितना आ रहा है। T1 0, T2 2। जब टी हम्म -2 मीटर पर सेकेंड। जब T1, T2 2 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, माइनस T1 0 पे कितना था, 10। तो -4/2 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस है, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज बिकॉज व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन लाइक दिस, वी को पॉजिटिव लेते हैं, वो ऑपोजिट है इसलिए नेगेटिव आ गया। तो जब भी position time graph would be like this, it is uniform motion and v is positive, and this is again uniform motion but this time v is negative। अगर तुम स्लोप से करते तब भी तुम्हारा आंसर नेगेटिव आता। ये एंगल कितना है, एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। tan इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे, ऑल साइन टैन कॉस, 90 से 180 टैन नेगेटिव होता है, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। एक और चीज, ये किसका ग्राफ है, इंटरप्रेट दिस। एक वर्टिकल लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, बताओ। हम्म, क्यों। और बताओ तुमको, बताओ गंगेश, ये पॉसिबल है नहीं है। सर नॉट हैविंग आइडिया अबाउट दिस। मेहल तुम बताओ, इज दिस ग्राफ पॉसिबल और नॉट। मैं उसको बोलता हूँ दिस इज ग्राफ ऑफ गॉड। बताए क्यों, at the same time something is present everywhere. How can a particle be present at the same time everywhere? गॉड को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, एट द सेम टाइम गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो भाई एक ही टाइम पे एक पार्टिकल अलग अलग जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा ग्राफ होता तो यह क्या पॉसिबल होता, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं।
इज दिस ग्राफ पॉसिबल? ये भी सेम लॉजिक से पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इफ आई ड्रॉ, नो 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 नॉट दैट, एक ही टाइम पे पार्टिकल तीन जगह कैसे हो सकता है? पार्टिकल कैन नॉट बी एट थ्री प्लेसेस। या तो रजनीकांत हो, वो तो हर जगह हो सकता है, बुलेट सामने से आ रही है, गन से दो ऐसे पकड़ के पीछे कर देता है। इट्स नॉट पॉसिबल हियर, सो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। अ पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेजेंट एट द थ्री डिफरेंट पोजिशन एट द सेम टाइम। आज जो हमने किया जरा देखो, कुछ और पूछना है तो मेरे को डाउट है, एक बार रिवाइज करो। आज जो भी हमने किया उसमें कोई भी एनी डाउट, इफ यू हैव आस्क। अभी पता है चैप्टर कब है? 18 में उसमें आ रहा है ये वाला, ये आ रहा है ना? ये नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे ना, इस चैप्टर को हम बीच में रोक के वी कैन स्टार्ट विद द यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बिकॉज काफी लोगों का वो शुरू होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लेंगे ना, वी माइट स्टार्ट विद डायमेंशन कर लेंगे, इट्स नॉट नॉट एन इशू। Sir, our class will be only on Wednesday and Friday only. वेडनेसडे फ्राइडे है तुम्हारी डाउट क्लास होगी, संडे को आफ्टर द मैथ्स क्लास, एवरी So, जब तुम्हारी sir, हाँ, this Sunday it would not be, no? दिस संडे इट वॉन्ट बी देयर, बट 9th में से तुम्हारा बैच शुरू हो रहा है, तो जब तुम संडे आया करोगे तो मैथ्स क्लास के बाद मेरी मैथ्स क्लास होगी, सेकेंड क्लास मैथ्स की होगी, जो मैथ्स की क्लास इमीडिएट तुम फिजिक्स पढ़ोगे फिर मैथ्स, ठीक है? उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा कराऊंगा या डाउट क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब वी वॉन्ट बी मूविंग द सिलेबस देयर, लेकिन तुम्हारे अगर कोई एक्स्ट्रा चैप्टर तुम्हें कुछ पढ़ना है या कुछ न्यूमेरिकल्स करने में मेरे साथ, तो वो करेंगे हम, ये होगा, ठीक है? And sir, one doubt I am having regarding maths. मैथ्स का तो दो क्लासेस हुआ करेंगी ना, 1.5 आवर की, एक तो No, sir, one doubt I want to know. So, sir, do I need to have another tuition for maths? देखो मैथ्स में ऐसा था कि मैथ्स में I'll be conducting tests which will be totally MCQ, सारा तो I'll cover 11th का entire syllabus in detail, तुम उसमें स्कूल भी कवर हो जाएगा पूरा तुम्हारा, एंट्रेंस का भी करूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मैं अपनी सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, पर हो सकता है कोई तुम्हारा चैप्टर आ रहा हो जो कि आई हैव नॉट डन इन दिस विद यू, ये पॉसिबल हो सकता है, वो सीक्वेंसिंग का फर्क रहेगा, बिकॉज आई कांट मेक टीच ऑल द चैप्टर, बिकॉज हर स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है, बट स्टिल आई बी ट्राई टू आई कीप आस्किंग यू गाइस कि कौन सा चैप्टर स्कूल में चल रहा है, आई स्टार्ट विद दैट ओनली, जैसे आई स्टार्ट विद सेट रिलेशन, देन आई मूव टू सीक्वेंस सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स दे इन सम स्कूल दे स्टार्ट विद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। Yes, sir, like our paper will be directly in September only, in end of September. अच्छा तुम तो कर लो, बेटर रहेगा, हेल्प हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि मैं तुम्हें पुराने जो वीडियोस है ना, वहां से तुम पुरानी क्लास दे सकते हो, उसी यूट्यूब चैनल पे यूल फाइंड क्लास 11 जेई 25 26, उसमें पिछले साल के सारे वीडियोस हैं, तो मान लो मैंने सेट्स रिलेशन से शुरू किया, बिकॉज आई बी डूइंग इन डिटेल, एंड तुम्हारे एग्जाम में कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो तुम कॉम्प्लेक्स वहां से पढ़ सकते हो, एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, ठीक है? व्हाट्सअप कर देना मुझे, या वैसे पूछना साउथ एक्स में पूछ लेना, यहाँ गुड़गांव सेंटर के लोग गुड़गांव में पूछ सकते हैं क्लास के बाद, इनको एडवांटेज ये है कि क्लास के बाद रुक के फिजिक्स पूछ लेंगे, तुम वहाँ संडे वाली क्लास में पूछ लेना, ठीक है? एंडिंग द क्लास।